સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝના અહેવાલની ધારદાર અસર એમએસયુના વિદ્યાર્થી સાથે જે ગેરવર્તણૂક કરવામાં આવી હતી તેને લઈને મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। વડોદરામાં કોલેજ બહાર બુલેટ પર સવાર એમએસયુના વિદ્યાર્થીને રોકી પોલીસ દ્વારા મેમો આપવા મામલે વિવાદ ઊભો થયો છે। વિદ્યાર્થી જગદીશ તિવારી કોલેજમાંથી બહાર નીકળતો હતો ત્યારે હેલ્મેટ ન પહેરવાના આરોપમાં તેને રોકવામાં આવ્યો, પરંતુ વિદ્યાર્થીનો આરોપ છે કે ત્યારબાદ પોલીસકર્મીએ તેની સાથે ગાળાગલોચ કરી અસભ્ય વર્તન કર્યું। આટલું જ નહીં, ઈ ચલનમાં હેલ્મેટ ન પહેરવાને બદલે વિદ્યાર્થીના હાથનો ફોટો અપલોડ કરવામાં આવ્યો હોવાનો પણ ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે। વિદ્યાર્થીએ વધુમાં જણાવ્યું કે ચલનમાં કોલેજ બહારના કાલાગોડા વિસ્તારના બદલે ઉંડેરા રોડનો ફોટો બતાવવામાં આવ્યો હતો। આ સમગ્ર મામલે ટ્રાફિક પીએસઆઈનું નામ વટાવી કોન્સ્ટેબલ કિરણભાઈ જોગડિયા દ્વારા 3000 રૂપિયાની ઉઘરાણી કરવામાં આવી હતી અને માત્ર 500 રૂપિયાનું મેમો આપવામાં આવ્યું હોવાનો પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે। મામલો સામે આવતા વિદ્યાર્થી નેતાઓ પણ જગદીશ તિવારીની વારે દોડી આવ્યા હતા અને સમગ્ર ઘટનાની ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી। આ મામલે મીડિયા અહેવાલો, ખાસ કરીને સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝના અહેવાલની ધારદાર અસર જોવા મળી છે। એક ટીઆરબી જવાનની હકાલપટ્ટી કરવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય એક પોલીસકર્મીને પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે બદલી કરવામાં આવી। જે 2 દિવસ પહેલા જે ટ્રાફિકનો જે બનાવ બન્યો હતો, જેમાં ખોટી રીતે 3000 રૂપિયા એક વિદ્યાર્થીના પડાવી લેવામાં આવ્યા હતા, જેના માટે અમે ટ્રાફિક એસીપી સરની ઓફિસમાં અને પોલીસ કમિશનર શ્રીને લેખિતમાં ફરિયાદ કરી હતી અને એ ફરિયાદને આધારે આજે સવારથી ડીસીપી સર જે ઋષિકેશ ઉપાધ્યાય સર છે તેમના દ્વારા અમારે સવારથી ઇન્વોલ્વમેન્ટ લેવામાં આવ્યું, સમગ્ર તપાસ કરવામાં આવી અને જે અધિકારીના નામનો ખોટો ઉપયોગ થયો હતો એ જેટી દેસાઈ સાહેબના નામનો ખોટો ઉપયોગ કરીને બે ત્રણ અધિકારીઓએ તેમના નામનો ઉપયોગ કરીને 3000 રૂપિયા પડાવી લેવાયા હતા અને ખોટો મેમો, ખોટો ફોટો આપીને, ખોટું સ્થળ આપીને આપવામાં આવ્યો હતો, જેનામાં ઋષિકેશ સર દ્વારા ઇન્વોલ્વમેન્ટ લઈને અને પોલીસ કમિશનર સર દ્વારા ઇન્વોલ્વમેન્ટ લઈને જે અધિકારી દ્વારા ખોટો મેમો લેવામાં આવ્યો હતો તેને તાત્કાલિક ધોરણે બદલી કરવામાં આવી છે અને એક અધિકારીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે। તેના બિલકુલ આ એક દાખલો બેસે, ભવિષ્યમાં આગળ કોઈ પણ પોલીસ અધિકારી કે કોઈ પણ નાનામાં નાનો અધિકારી હોય કે મોટામાં મોટો અધિકારી હોય, કોઈની પણ સાથે છેતરપિંડી કરતા કે પૈસા પડાવતા 10 વખત વિચાર કરશે અને અમે પોલીસ કમિશનર સાહેબ અને એસીપી डीएसपी साहब जी ऋषिकेश उपाध्याय सर खूब खूब आभार मानिए। 22 तारीख को मैं रैली में जा रहा था, जो सुबह सुबह रैली गोरवा से उठने वाली थी, तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से डेरी डैम से निकला था, तो फिर मेरे को काला घोड़ा से मेरे को पकड़ा गया था। तो वहाँ से मेरे को पकड़ के फिर एक्सीडेंटल गेट के बाजू में जब जहाँ गाड़ी रखते हैं वहाँ पर पकड़ा था, तो एक पीएसआई मेरे पास आए और मेरे को गाली देते हुए आए, माँ के ऊपर भी। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को गाली मत दो, तो मेरे को बोलते कि तू क्या कर लेगा, क्या तोड़ लेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो उसके बाद उनके साथ एक और मतलब साथ में थे सिविल ड्रेस में, जिन्होंने मेरे को पकड़ा था काला घोड़ा से, तो वो मेरे को बोलते गुना दाखिल कर देंगे, केस कर देंगे, तो उस चीज़ की धमकी देते। तो मैंने उनको बोला कि मेरे ऊपर केस मत करो, मेरे नेक्स्ट मंथ मेरी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तो अच्छा है, तेरे ऊपर केस होगा तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर वो जो पीएसआई थे उनके साथ जो सिविल ड्रेस वाले थे वो चले गए। उसके बाद उन्होंने अपना एक ट्रैफिक हवलदार भेजा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब क्या करना है, कुछ बता, कुछ दे पाएगा, सेटलमेंट की बात करना शुरू की। तो मैंने बोला मैं नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास पैसा नहीं है, ना मैं कमाता हूँ। तो उसने बोला नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आगे तुम्हें और ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, बाइक तुम्हारी रख लेंगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार दे पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 3000 तू लेके आ। मैंने बोला ऑनलाइन कर पाऊँगा, बोला ऑनलाइन ही मुझे केस चाहिए। तो उस वक्त मैंने अपनी मम्मी से 3000 रुपया ऑनलाइन डलवाए। फिर सयाजीगंज पुलिस स्टेशन है, उसके पीछे एक दुकान है, तो मैं वहाँ जाके ऑनलाइन पेमेंट करके 3000 रुपये केस लेके आया। फिर उसके पास गया जो हवलदार थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अपना फ़ोन जेब में रख लो और जो पैसा है वो जो बाइक आती है उसके बेड में, उसके साइड में साइड बैग आता है, तो उन्होंने बोला कि वो ये पैसे उसके अंदर डाल दो। तो उन्होंने जैसे पैसा डलवाए तो फिर उन्होंने किसी को कॉल किया और बोलते हैं कि 500 रुपये का मेमो बना दो। पर मेरे मन में आया कि मतलब 3000 दिया और 500 का मेमो, पर अगर मैं उस वक्त सवाल करता तो वापस मेरे को वही धमकी देते, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। फिर वहाँ से मेरे को चाबी दी और चला गया। फिर उसके बाद मेरे पास जब वापस मेमो आया तो मैंने उसमें देखा कि उसमें किसी का हाथ दिख रहा है और जो एड्रेस था वो भी उंडेरा का दिखा हुआ है, जहाँ उस एड्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को पता भी नहीं वो जगह कहाँ पर है, ना मैं आज तक गया हूँ। फिर उसके बाद मैंने कल अर्जी डाली थी, कल कंप्लेन की ट्रैफिक पुलिस में। तो उसके बाद आज सुबह सुबह मेरे को डीएसपी उपाध्याय साहब ने
ने बुलाया, फिर उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक्शन ले लिया और मतलब मेरी हेल्प की। तो वो आपको मेमो जो दिया गया था वो भी नकली मेमो था, क्या था वो? नहीं, वो मेमो असली था, बट उसमें जो फोटो थी वो गाड़ी के बदले किसी के बदले मतलब किसी के हाथ की फोटो थी और एड्रेस गलत था। तो किसने पैसे मांगे थे आपके? उसको PSI ने मांगे थे? क्या नाम था उनका? नाम तो मेरे को पता नहीं है। जो ट्रैफिक हवलदार थे उन्होंने जैकेट पहना था और उन्होंने नाम बताया नहीं था और उन्होंने ही मेरे से पैसे मांगे थे। क्या हुआ वो लोगों के खिलाफ क्या हुआ एक्शन? वो DSP साहब ने हमें यही बोला कि उनकी बदली करने में आया और उनको एक को सस्पेंड कर दिया है। कितने रुपये लिए थे आपके? मैं 3000 रुपया लिए थे मेरे पास से। तो कौन कौन लोग थे और लेने वाले? एक PSI थे और उनके साथ एक और सिविल ड्रेस में थे जिन्होंने मेरे को पकड़ा था, और तीसरे जो उन्होंने पैसे के लिए सेटलमेंट करने के लिए एक ट्रैफिक हवलदार भेजा था। लेकिन आपने क्या रूल्स ब्रेक क्या किया था? मैंने रूल्स ब्रेक ये किया था कि मतलब जा रहा था तो मतलब हेलमेट नहीं पहना था उसके लिए, पर उन्होंने बोला कि आपके बाइक में साइलेंसर है। मेरे पास बुलेट थी, साइलेंसर है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने उस वक्त अपनी गलती मानी, मैंने बोला ठीक है मेरी गलती है। तो खाली मैंने ये बोला कि मेरी माँ की क्या गलती है, मेरी माँ को गाली क्यों दिया। मैंने अपनी गलती मांगी भी, मैंने ये बोला कोई बात नहीं, आप जो चार्जेस है वो बना दो, बट इसमें मेरी माँ की गलती नहीं है, तो मेरी माँ को क्यों गाली दिया गया। तो ये एक्शन जो हुआ वो सही हुआ? हाँ सही, मतलब जो एक्शन उसके बाद DSP साहब ने लिया बहुत सही लिया, और आगे भी बोलूँगा कि ऐसे ही एक्शन ले, और ऐसे लोगों की वजह से बाकी पुलिस वालों का नाम बदनाम होता है। क्या नाम है आपका? जगदीश तिवारी।